रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई, अब उसको स्टॉप करना है तो वो भी नहीं आते हैं। पता नहीं क्या ग्लिचेस है, आई डोंट नो अबाउट इट. Okay, once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Welcome to the MCC third chapter, that is mobile communication and computing. So we're going to start the third chapter as mobile networking. Okay, so till last lecture we have successfully completed the first two chapters, and now we're going to start the third chapter as mobile networking. Now let us see what are the different topics we are going to learn in this particular chapter. Okay, so everything is done. I hope you can see this particular screen. Sir, I can see the recording feature. It is Okay. present over here. Yes, the recording has been already started now. Start Okay, to हो गई. started. Okay. Yes, started. Yeah, actually I was discussing that case sometime the recording option does not show. Okay, and when you start the recording once, so it does not show the stop वाला recording का option. कभी कभी ऐसा होता है, मॉर्निंग में ऐसा मेरे साथ में हुआ. तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि आपको जिसको ऑप्शन दिख रहा होगा तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करें. अब उसमें से कुछ लोग बोलने लगे कि हो सकता है सर कि जो होस्ट है तो वही इसको स्टॉप कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो. हर कोई इसको स्टॉप कर सकता है. चलो कोई बात नहीं. सो लेट अस स्टार्ट विद the third, that is mobile networking. And first of all, we are going to the different topics we are going to learn in this. We'll be learning four different modules. Okay, so three modules है. First वाला I think चलो ठीक है, introduction part है. So first of all, mobile networking, that medium access protocol. Okay, we need to focus on the third layer of the OSI reference model. Okay, just recall the third layer, that is data link layer. And as I told you that your data link layer has been divided into two sub layer. ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने CN में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था 5th सेमेस्टर में. Our data link layer has been divided into two sub layers. Okay, the two sub layers, the first layer is the data link control and the second is MAC, that is medium access control. Okay, so these two sub layers are in the data link layer only, and your medium access control is the one layer which control your medium. Okay, for example, if sender wants to transmit some data to to the receiver, then your medium को, जो आपका मीडियम है, अब हो सकता है किसी एक सेंडर का डेटा नहीं जा रहा बल्कि मल्टीपल. ठीक है, so it might create an issue that multiple senders are trying to send the data from the same link, from the same medium, from the same channel. Okay, so ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम को कंट्रोल करना पड़ेगा. मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी क्लासरूम है. You people have seen your classrooms. Okay, what is the capacity of एक सेकेंड. कैपेसिटी आपकी एक टाइम पे क्लासरूम से बाहर जाने की कैपेसिटी कितनी है. फॉर एग्जांपल 2 लोग एक साथ में इजीली बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, और या फिर उसके अलावा हम लोग बोलेंगे क्लासरूम की जो कैपेसिटी आप लोग की 60 की कैपेसिटी, अगर उसमें मैं 120 बिठाऊँ या कुछ ज़्यादा बिठाऊँ तो कैपेसिटी ओवर चली जाएगी. वैसे दूसरा एग्जांपल कि अगर आपका जो डोर है जिससे हम लोग अंदर आते जाते हैं तो उसमें 2 लोग एक साथ में जा सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा. इमेजिन करो वो हमारा मीडियम है, वो हमारा चैनल है, वो हमारा लिंक है. ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्लास से बाहर और बाहर से क्लास में जाते हैं. ओके, तो अगर 2 से ज़्यादा लोग जाएंगे तो थोड़ा सा फंस के जाएंगे. ठीक है, लेकिन चले जाएंगे. ठीक है, चलो 3 लोग भी चले, दुबले पतले मुहिब जैसे स्टूडेंट और इसरार जैसे लोग वहाँ से निकल सकते हैं. लेकिन थोड़े से अगर कभी हैवी अगर आ गए तो उन लोग 2 भी मुश्किल से जा पाएंगे. यानी कि बेसिकली क्या होगा कि अगर हम लोगों ने उस लिंक को, उस मीडियम को अगर कंट्रोल नहीं किया, हम लोग बोलेंगे कि रुको भाई, पहले एक जाओ, फिर दूसरा जाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा. अगर हम लोगों ने कंट्रोल किए तो वहाँ पर कंजेशन कभी नहीं होगा कंजेशन नहीं होगा. ओके, अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा फिर. आप लोग जैसे निकलते हैं माशाल्लाह एकदम धड़ाल से सब एक साथ में, तो क्या होगा फिर वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा. हो सकता है कि दरवाज़ा भी टूट जाए. ओके, और हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा लॉस हो जाए, कुछ मतलब कि कुछ नुकसान हो जाए. ठीक है, तो यही हाल होता है हमारा जब हमारे पैकेट्स एक मीडियम में से, एक लिंक में से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो जितनी कैपेसिटी है, जितनी मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा फिर कंजेशन हो सकता है. तो उसी के लिए हमारे पास में क्या है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल है.
कि हमारे मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करूं। अगर आपने मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल नहीं किया देन व्हाट विल हैपन, कंजेशन में अकर। और अगर कंजेशन होता है तो आपको तो पता है फिर एक बार गाड़ी फंसी तो फिर कैसे फंसती है, ठीक है। यू कांट, आप बोलेंगे उसको बोलेंगे तुम निकालो, हम वो बोलेगा कि तुम निकालो, और वहां पे फिर फंस जाएंगी गाड़ी और फिर निकल नहीं पाएंगी। तो कंजेशन हो गया तो फिर बहुत सारे वी कैन से टेक्निक लगाना पड़ेगी, बहुत सारे मतलब हम लोग को मतलब जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके फिर हम लोग को उसमें से निकलना पड़ेगा। So that will be very difficult for us to come out from the congestion like situation. Okay, so we need to take utmost care that the congestion should not occur. Okay, and for that we have a medium access control. Okay, so this is the layer and we have a protocol called as medium access protocol which control this particular medium का access. पैकेट आया, परमिशन लेगा मुझसे, मैं जाऊँ, ओके तो चला, क्योंकि अभी कोई है नहीं, अभी कोई जा नहीं रहा है, जाओ। दूसरा पैकेट आया, मुझे जाने का है, तो मैं उसको बोलूँगा देख एक पैकेट जा रहा है, काफी आगे निकल गया, चल तू भी चलेगा उसके पीछे, ठीक है, तो चलो आराम से लोग जा रहे हैं। दो साथ में आए, दो पैकेट साथ में आए, बोले हम लोग को जाने का, हमने बोले रुक जा, दो नहीं जा सकते, एक को जाने दे, एक गया। तो दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो मीडियम मतलब आपका चैनल, मतलब आपका लिंक जिसके थ्रू आपके पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। ओके, तो उस मीडियम के एक्सेस को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ओके, इतना दिमाग में रखो। अच्छा, वॉट एवर वी हैव इन द कंप्यूटर नेटवर्क, इफ यू रिमेंबर, जस्ट लेट मी नो यू पीपल रिमेंबर इट और नॉट, व्हाट आर द डिफरेंट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। हम लोग ने देखा था वहां पर जो मीडियम एक्सेस जो प्रोटोकॉल थे उसमें रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल थे, एक कुछ उसके अंदर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल थे। आपको अगर याद होगा तो आप मुझे कुछ प्रोटोकॉल के नाम बता सकते हैं? किसी प्रोटोकॉल का नाम बता सकते हैं आप लोग मुझे, जो आपको याद हो, जो हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क्स सब्जेक्ट में? मैं कहाँ सर बोले, अभी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो याद नहीं, तो लास्ट सेमेस्टर का कहाँ से पूछ रहे हैं? लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर का किसी को याद है? मैं बताऊं? नो, एनीवन? कोई बात नहीं, CSMA, वेरी गुड। मैंने कहा ना इस साल शिफा काफी एक्टिव है। सो सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने देखा था, यस, अलोहा, वेरी गुड। सो द वेरी फर्स्ट प्रोटोकॉल वी हैव सीन इट वाज अलोहा। ओके, देन अलोहा के बाद में एक और प्रोटोकॉल देखा था हम लोगों ने, CSMA। ओके, उसके बाद में एक प्रोटोकॉल था CSMA CD। ओके, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, दैट इज CSMA। उसके बाद में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्लैश CD, कोलिजन डिटेक्शन, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ओके, इट वाज द वन प्रोटोकॉल। उसके बाद में और एक था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, CA। ओके, सो दीज वर द फोर प्रोटोकॉल्स वी हैव सीन। अच्छा, अलोहा में वी हैव सीन टू टाइप्स, वन वाज द सिंपल अलोहा, आई थिंक उसका नाम क्या था पता नहीं, लेकिन सिंपल था, और सेकंड वाला था स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, स्लॉटेड अलोहा, रिमेंबर श्रुति, वेरी गुड। तो स्लॉटेड अलोहा के अंदर वी मेक श्योर दैट के द सेंडर विल सेंड द पैकेट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द टाइम ओनली। तो हम लोग पूरे टाइम को डिवाइड कर लेते थे और उस स्लॉट के इनिशियल फेज में ही उनको सेंड करना है, दैट वाज द रेस्ट्रिक्शन। तो ये चीज हम लोगों ने देखे थे ना, यू नो, वी हैव गॉट ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। why we have got all these technologies? Because we want to control the medium, we want to control the access of the medium। हम लोग को इस पर्टिकुलर मीडियम को कंट्रोल करना है so that यहाँ पे कंजेशन ना हो, यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, और हमारा ये जो चैनल है ये चोक ना हो जाए। ओके, so for that we came up with different types of technologies, we came up with different types of techniques। okay, अच्छा, ये जो हम लोग सब बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जरा फोकस करो। सो हम लोगों ने जो सब बात की, सो वी वर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द वाइड मीडिया। ओके, मतलब वहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग ने जो ये सब पढ़ा था वो सब हम लोग ने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू द वाइड ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया था, जो चैनल था, जो लिंक था, वो कौन सा था? इट वॉज वाइड ट्रांसमिशन मीडिया।
ओके मतलब वो वायर ट्रांसमिशन मीडिया था। बट राइट नाउ जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सो दैट इज नथिंग बट द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब के अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में, तो जो हमारा मीडियम है, जो हमारा चैनल है, जो हमारा लिंक है, तो दैट लिंक इज द अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम लोग बोलेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि जो चीजें, जो प्रोटोकॉल, जो टेक्नोलॉजी वी हैव यूज्ड इन द वायर ट्रांसमिशन मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट, those will not be applicable for the wireless transmission media। मतलब इस एनवायरमेंट के लिए वो प्रोटोकॉल आपके लागू नहीं हो पाए। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं इश्यू आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यही रीजन है हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ने का। मैं आपको इतना सब जो कार्यक्रम इतना आपको मैं बता रहा था, वो इसके लिए बता रहा था, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन टू लर्न द न्यू टॉपिक। ओके, आप ये न्यू टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो भाई, उसका रीजन क्या है? रीजन इसीलिए है द प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल नहीं है हमारे पास में, मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल नहीं है हमारे पास में, है हमारे पास में अलोहा है, CSMA है, CSMA CD है, CSMA CA है, ये सारे प्रोटोकॉल है हमारे पास में। बट व्हाई वी आर लर्निंग द न्यू टॉपिक्स एंड द न्यू protocols? Because those protocols were applicable to the wide media only. Okay, and now these protocols will be applicable, what we are going to learn now. So these protocols will be applicable to the new wireless transmission media, because we are in the wireless environment now। ठीक है, अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे with respect to the wireless, because हम लोग ने पहले हम लोगों ने कस्टमर से और हमारे यूजर से हम लोगों ने प्रॉमिस किया गया है, यू विल गेट द सर्विसेज ऑन द मूव। ओके, आपको सर्विसेज कैसे मिलेंगी? ऑन द मूव सर्विसेज मिलेंगी। आप यहाँ जाओ मिलेंगी, आप जापान चले जाओ मिलेंगी, आप यहाँ से कलकत्ता चले जाओ आप मिलेंगी, तो आप कहीं भी जाओ आपको सर्विसेज मिलेंगी। ओके, सो वी हैव प्रॉमिस टू द यूजर दैट आपको सर्विस मिलेगी। और जब सर्विस मिलेगी तो हमारा बंदा कैसे घूम रहा है? हमारा बंदा कार में घूम रहा है, प्लेन में घूम रहा है, बस में घूम रहा है, ट्रेन में घूम रहा है, सो ही और शी इज गोइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वी कैन से कंट्री। ठीक है, हम यहाँ पर बात हमारी सीमित कंट्री तक रखते हैं, तो वो हर जगह घूम रहा है। एंड आवर टास्क इज टू प्रोवाइड द सर्विस टू माय यूजर। ठीक है, तो मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है, जो कि मेरा बंदा यहाँ वहाँ घूम रहा है, कहीं 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 पर भी घूम रहा है। ठीक है, तो वो कहीं पर भी हो, मुझे उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। वो वायर्ड नहीं है, अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू। ठीक है, तो वो एक जगह स्टिल नहीं है, द यूजर इज मूविंग हियर एंड देयर। ओके, the user is moving anywhere in the country। Okay, so we have to make sure that we must provide the service, we must provide service to the user at any location। Okay, so that's why this is the reason why we are learning this new topic। I hope you people are understanding and you people are getting why we are learning the new topic and why we are learning the medium access protocol with respect to the wireless transmission media, with respect to the wireless domain or environment। प्लीज रिस्पॉन्ड, यू पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को? यस सर। ओके, अभी तो मैंने आपको जस्ट खाली मैंने ओरली बताया हूँ। जब हम लोग टॉपिक्स में मूव करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आता जाएगा कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो पढ़ा था वो विद रिस्पेक्ट टू द वायर्ड मीडिया था, और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वायरलेस एनवायरनमेंट। ओके, चलते हैं अभी हमारे स्लाइड पर। सो सबसे पहले हमारे सिलेबस है, द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज 3.1 मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो सबसे पहले ये आया मोटिवेशन फॉर स्पेशलाइज्ड मैक। ओके, हमारे पास में मीडियम एक्सेस कंट्रोल नहीं है हमारे पास में CSMA, अलोहा, स्लॉटेड अलोहा सब है, लेकिन व्हाई वी नीड सम स्पेशलाइज्ड मैक? बिकॉज नाउ वी आर इन द वायरलेस एनवायरनमेंट। ओके, सो वी हैव टू मोटिवेट द पर्सन दैट भाई ये वायरलेस एनवायरनमेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशलाइज्ड मैक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो स्पेशलाइज्ड मैक का नाम है MACA, दैट इज मैका। ओके, अब मैं जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, जिस टेक्निक की बात कर रहा हूँ, वो टेक्निक का नाम है MACA। उसका फुल फॉर्म है मल्टीपल एक्सेस, सॉरी मतलब अब यहाँ पर आएगा, मैं भी मेरे से निकल गया, एक सेकेंड। मैका
ऐसा होता है। रुको, आगे आ जाएगा आप लोग को, पहले मैं आपको ये पहले चीज बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। कभी कभी जहन से ऐसी चीज निकलती है ना, अचानक जहन से निकलती है। सो मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन, क्यों मोटिवेशन आया वो इंट्रोडक्शन पूरे मैंने आपको भाषण दिया, वो सब मोटिवेशन फॉर स्पेशलाइज्ड मैक में, कि why you need the specialized Mac if we are having, if you are already have the CSMA slotted Aloha and all this protocol, then why we need the specialized Mac? So this is the reason, because you were in the wired environment and now we are in the wireless environment. Okay, so that's why it needs a special protocol, a special technique, and that is the MACA. ओके, कमिंग टू द 3.2, ये इस सेकंड में आप लोग पढ़ेंगे मोबाइल आईपी के बारे में। ओके, आईपी पैकेट कैसे डिलीवर होता है। ओके, सो विल सी द कंप्लीट जर्नी, विल सी द होम नेटवर्क, फॉरेन नेटवर्क। ओके, सो हाउ योर पैकेट ट्रेवल्स एंड गोज टू द फॉरेन नेटवर्क एंड इट डिलीवर्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन। तो आईपी पैकेट डिलीवरी कैसे होती है, और हर रीजन में कुछ एक एंटिटीज होती है, वी कॉल दोज एंटिटीज एट द एजेंट। ओके, and how agent advertise themselves and how they discover themselves, what is the process of registration, why we need the process of registration, because whenever you go into the new area, then you have to register yourself in order to get the services. Okay, so that's the process of registration. Then we have tunneling and encapsulation. Tunneling is basically one secure medium through which your data will travel. I will let you know about it. That's a very simple one. Then we have a reverse tunneling, the way or the इसको हम लोग बोलेंगे जिस चैनल से हमारा डेटा आया है उसी चैनल से हम लोग उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो भाई जो रिस्पॉन्स जाएगा वो रिस्पॉन्स वहीं पे जाएगा, तो आपका रिवर्स टनलिंग में आता है। देन राउटिंग, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द राउटिंग, वी वर हैविंग टू टाइप्स ऑफ राउटिंग। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक क्या आप लोगों ने पढ़ा ही है। द फर्स्ट वन वाज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, द सेकंड वाज लिंक स्टेट राउटिंग। इन दिस वायरलेस एनवायरनमेंट, सी एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। वहां प्रोटोकॉल अलग थे, यहाँ प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से अलग हो गए। वहां पे राउटिंग एल्गोरिथम्स अलग थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग थे, यहाँ पर आपको राउटिंग अलग हो गए। एक हो गया डीएसडीवी, आपका डिस्टेंस डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डीएसडीवी। एंड डीएसआर, नाम देने से निकल जाते हैं इनके फुल फॉर्म। तो बहरहाल ये दो टाइप्स की राउटिंग है आपकी, DSDV and DSR. These are the two types of routing which are used in the wireless environment. Okay. Okay. The last one is regarding mobile TCP. No, understanding the topic what we are going to learn in the chapter is very very important. Okay. जब तक आपको पूरा ओवरव्यू अच्छा समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप चैप्टर के अंदर मतलब प्रॉपरली इमर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ फुल स्कोप एंड पूरा व्यू होना चाहिए आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको वैसे बताया कि पहले हम लोग मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक अच्छी टेक्निक है जिसका नाम है मैका। उसके बाद में आईपी मतलब मोबाइल आईपी के बारे में, कैसे पैकेट डिलीवर होता है, होम नेटवर्क क्या होता है, फॉरेन नेटवर्क क्या होता है, अगर आपका डेस्टिनेशन अगर कभी जगह पे नहीं है, कहीं दूसरी जगह पे गया हुआ है, तो आपका पैकेट बराबर ढूंढते ढूंढते जाता है। ठीक है, तो वो बराबर उसका जो प्रोसेस है, जो टर्म्स यूज होते हैं, वो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और थर्ड सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल टीसीपी के बारे में। सो मोबाइल टीसीपी क्या है, इसमें पहला जो ट्रेडिशनल था वो क्या था, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए, तो इम्प्रूवमेंट्स फिर जो आए हैं, तो इनडायरेक्ट टीसीपी है, स्नूपिंग टीसीपी है, मोबाइल टीसीपी है। तो दीज आर दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीसीपीज विच आर कॉल्ड एज दी इम्प्रूवमेंट इन द क्लासिकल टीसीपी। ठीक है, तो पहले के क्लासिकल टीसीपी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, तो उसके अंदर उसको बोला गया, एक को इनडायरेक्ट टीसीपी, दूसरे को बोला गया स्नूपिंग, थर्ड को बोला गया मोबाइल टीसीपी। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है लाइक फास्ट रिट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, दैट विल लर्न अबाउट। ओके, तो ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, व्हाई वी नीड द स्पेशलाइज्ड मैक। ओके, दिस इज द मोटिवेशन फॉर स्पेशलाइज्ड मैक। हमको भाई नया प्रोटोकॉल क्यों चाहिए, मीडियम एक्सेस कंट्रोल का प्रोटोकॉल हमको क्यों चाहिए स्पेशलाइज, because now we are in the wireless environment and we required the protocol which can handle and which can work in the wireless environment. Okay, पहले वाला जो था वो भाई काम करता था, लेकिन वो काम करता था आपका वायर्ड नेटवर्क में। now we need to work in the wireless environment.
In wireless environment, your protocol will not work. Okay, it will lag somewhere, so we need a new protocol. Okay, अब ये चीज को दिमाग में रखते हुए now you can read this one. The main question in the connection with MAC in the wireless is whether it is possible to use elaborated MAC scheme. चलो इसको छोड़ो. ये CSMA CD are used in the original specification of IEEE, जो पहले यूज करते थे. So let us consider carrier sense multiple access with the collision detection. जो हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क में, it is one of the random access protocol है आपका. ये मतलब आपका मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल है. ये कैसे काम करता है? असेंडर सेंसेस द मीडियम. देखो मैंने यहाँ पर उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हूँ बाकायदा. मैंने पूरा जो पॉइंट थे, सो दैट अगर आप इसको एक बार रीड भी करेंगे ना, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है. सो उसने एक CSMA CD का एक छोटा सा वर्किंग यहाँ बताया, और फिर उसको लेके उसने उसकी जो लैगिंग्स है या उसके बोलेंगे डिसएडवांटेजेस है, वो बता के फिर नया मैक आपको इंट्रोड्यूस करवाया. तो एक का जैसे आपका CSMA मेरे आपके क्या थे आपके पास में, अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, देन CSMA CD एंड CSMA CE. तो इतने सारे थे आपके पास में. तो उसने उसमें से एक लिया, दैट इज CSMA CD. उसका वर्किंग आपको बता रहा है. असेंडर सेंसेस द मीडियम. क्या होता था? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते थे, योर सेंडर विल फर्स्ट सेंस इन द मीडियम. पहले टच करके देखेगा कि भाई आपका जो मीडियम है वो फ्री तो नहीं है, अगर मतलब बिजी तो नहीं है. अगर बिजी है तो वेट करेगा, और अगर नहीं बिजी है तो क्या करेगा फिर, इट विल कैप्चर इट एंड इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग. ये आपको पता रहना चाहिए, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग ने की. अ सेंडर सेंसेस द मीडियम टू सी इफ इट इज फ्री और नॉट. इफ द मीडियम इज बिजी द सेंडर वेट्स अंटिल इट इज फ्री. ठीक है, और जहां वो फ्री हुआ, इफ द मीडियम इज फ्री द सेंडर स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डेटा एंड कंटिन्यूज टू लिसन इनटू द मीडियम. ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोसीजर. अब कहीं पर कोलिजन होता है, इतना करने पर भी कोलिजन कहीं होता है, इफ द सेंडर डिटेक्ट्स अ कोलिजन व्हाइल सेंडिंग इट स्टॉप एट वंस एंड सेंड्स अ जैमिंग सिग्नल. ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है आपका जो कि CSMA CD में हम लोगों ने पढ़े थे. ठीक है, आगे पिक्चर बाकी है भी. द सिचुएशन इज डिफरेंट इन वायरलेस नेटवर्क. देखो अब ये आपको रियलाइज करवा रहा है कि नाउ यू आर नॉट इन द वायरलेस नाउ यू आर नॉट इन द वायर्ड नेटवर्क. आपका वायर्ड नेटवर्क था जिसके अंदर आप इजीली मतलब समझ जाते आपको, हाँ चलो भाई कहीं तो प्रॉब्लम हुआ है, आप एक जैमिंग सिग्नल भेजोगे, सबको अलर्ट करोगे, और फिर आपको जो भी मतलब बोलते ना आगे जो भी प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट करके आप वहां से कोलिजन हटाओगे. ठीक है, सो ये हमारा आगे का प्रोसेस है. बट द सिचुएशन इज डिफरेंट इन वायरलेस नेटवर्क. द सिचुएशन इज डिफरेंट इन वायरलेस नेटवर्क. क्या है? द सेंडर मे नाउ अप्लाई कैरियर सेंस एंड डिटेक्ट एन आइडियल मीडियम. Okay, the sender starts sending but the collision happens at the receiver due to the second sender. हो सकता है, मतलब हो सकता है कि भाई कोई दूसरा सेंडर हो जो कि मेरी रेंज में ना हो, और वो भी सेंड इधर ही कर रहा हूँ. जिस रिसीवर को मैं भेजना चाह रहा हूँ, आई एम द सेंडर एंड आई वांट टू सेंड टू सम रिसीवर. ठीक है, अब जो रिसीवर है, रिसीवर के आगे और एक सेंडर है जो कि मेरी रेंज में नहीं है. अब वो रिसीवर क्या कर रहा है, बिकॉज भाई देखो हमारा वायरलेस नेटवर्क है, और वायरलेस नेटवर्क किधर है? हवा में वायरलेस नेटवर्क है. तो यहाँ कोई किसी को सेंस कर सकता है क्या? बोलो, अरे बोलो ना, कोई किसी को सेंस कर सकता है क्या? आपका पहले वाइड मीडियम था. इन वाइड मीडियम आपका पूरा एक कनेक्शन, एक पूरा वायर, एक पूरा चैनल, एक पूरा लिंक होता था, तो उसको सेंस करते थे, तो आपको पता चलता था कि यहाँ पर कोई ट्रांसमिट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, चलो भाई ठीक है, मतलब फ्री है, तो उससे आपको पता चलता था. बट यहाँ पे अभी वायरलेस मीडियम है, तो वायरलेस मीडियम में आपको पता चलेगा कैसे? नहीं पता चलेगा हमको. तो मैं फॉर एग्जांपल अभी आगे चल के वो एक चीज आने वाली है, दैट इज कॉल्ड हिडन एंड एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा. नहीं देखा होगा तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है 5 मार्क्स के लिए, कभी 10 मार्क्स के. वी हैव टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वन इज हिडन एंड एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम, दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर, and the second problem is near and far terminals. Okay, so these are the two problems, okay, which we face in the wireless environment. और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो प्रोटोकॉल है, जो टेक्निक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, मैका. ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस. तो मैका के थ्रू वी आर गोइंग टू सॉल्व द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू सॉल्व नियर एंड फार टर्मिनल प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है हम लोग मैका के थ्रू सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे हम लोग.
सो अभी मैं हूँ सेंडर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ एक छोटा सा, मैंने बोला था 12:30 तक लूंगा, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम बता के आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो आई एम द सेंडर ओवर हियर, ठीक है, और मैं ये रिसीवर को सेंड कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ फोकस करो, आप लोग सब समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे ये अगर आप डायग्राम समझेंगे तो, ठीक है। The sender is sending the data to the receiver, wants to send the data to the receiver, and यहाँ पर एक और sender, for example the sender 1, यहाँ पर एक और sender 2 है, और ये sender because we all are the wireless one, ठीक है, तो इस sender की रेंज हो सकता है यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ तक इसकी रेंज हो, ये इसकी रेंज है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सेंडर 2 है, वो सेंडर 1 की रेंज में नहीं है, ओके। तो जब रेंज में नहीं है तो सेंडर 1 ने क्या किया, चेक किया, तो उसको मीडियम फ्री लगा, कोई नहीं कर रहा है भाई, तो इसने उठा के डेटा सेंड किया, डेटा ट्रांसमिट किया। अब उसी टाइम पे सेंडर 2 ने भी किया, अब सेंडर 2 भी सेंड करना चाहता था, तो ये सेंडर 1 को नहीं मालूम, और सेंडर 1 सेंड करना चाहता है, ये सेंडर 2 को नहीं मालूम। अब दोनों को नहीं मालूम कि दोनों एक ही को सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब ये सेंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या होगा, अरे कोई बोल ही नहीं रहा, क्या होगा, कोलिजन सर। collision होगा, because two senders are trying to send the data to the same receiver. And why this is happening, because this is the wireless medium, this is the wireless network, and in wireless network each and every sender and receiver is having its own range also, ठीक है, हर एक की अपनी रेंज होती है। अब ये सेंडर भाई साहब की रेंज इतनी थी, उसको पता ही नहीं चला कि एक और सेंडर बैठा है विच इज ट्राइंग टू सेंड द डेटा टू द रिसीवर, जिसको मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, तो उसको कोई और भी सेंड करना चाह रहा है, ठीक है। तो कोलिजन इस तरीके से होता है। तो ये हमारे रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड द न्यू प्रोटोकॉल, व्हाई वी नीड अ स्पेशलाइज्ड मैक, ओके। इसीलिए हमको चाहिए इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और अच्छे से हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। यहाँ पर एबीसी टर्मिनल लेके हम लोग करेंगे, और फिर हिडन टर्मिनल क्या है, एक्सपोज टर्मिनल क्या है, ठीक है। तो ये आपका हिडन टर्मिनल है, ये एक्सपोज टर्मिनल है, फिर ये आपका नियर एंड फार टर्मिनल का प्रॉब्लम है, तो ये इसको भी समझेंगे, एंड देन विल कम अप विद द सॉल्यूशन दैट इज मैका, दैट इज मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने इतना बोले, इतना डिस्कस किए, आपको समझा होगा। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, चलो, अगर मैं इसीलिए हमेशा मेरा जो फर्स्ट टॉपिक का जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव दैट के द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अटेंडिंग एनी वर्कशॉप, अटेंडिंग एनी लेक्चर, कहीं पर भी, तो फर्स्ट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि वहां पर आपका मेन क्रक्स होता है। एंड यू मस्ट फाइंड अ रीजन टू लर्न, यू मस्ट फाइंड अ रीजन टू लर्न दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो रीजन तलाश करो सबसे पहले, अगर आपको समझ में आया कि ये टॉपिक क्यों है, तो आगे की सारी चीजें आप लोग अच्छे से कर सकते हो। दैट्स माय ओपिनियन, ओके। Okay, so we'll stop over here because as I told you that I'm going to attend and join new meeting. Shahrukh